So, good morning. How are you? Today we are starting with our chapter continuation electric motor. है ना? An electric motor is a rotating device that converts the electrical energy to mechanical energy. Electric motor is used as an important component in electric fans, refrigerator, mixer, washing machine, computer, MP3 player, etc. Do you know how an electric motor works? अभी देखो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो हमारे रोज़मरोज़ की ज़िंदगी में हर जगह पर है। पानी पीने का आरओ होता है उसमें होती है, पानी नीचे से ऊपर चढ़ाने का है उसमें होती है, कंप्यूटर में होती है, MP3 प्लेयर में होती है, फ़ैन में होती है, बहुत जगह वॉशिंग मशीन में। तो इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में गोल गोल घुमाने में, अगर वो चीज़ गोल गोल घूम रही है और हमने कुछ सामान इस तरह से लगा रखा है तो वो चीज़ आगे पीछे भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। जैसे लिफ्ट है समझ लो, तो लिफ्ट ऊपर जाती है और नीचे जाती है तो इसके अंदर भी मोटर होगी। अंडरस्टूड? An electric motor as shown in figure 13.15 consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of an magnetic field such that the arm A, B and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. The ends of the coil are connected to the two halves P and Q of a split ring. The inner side of these halves are insulated and attached to an axle. The external conducting edges of P and Q touch the two conducting stationary brushes X and Y respectively as shown in the figure 13.15. Current in the coil ABCD enters from source battery through conducting brush X and flows back to the battery through Y. Notice that the current in the arm AB of the coil flows from A to B. In the arm CD, it flows from C to D, that is opposite to the direction of current from A to B. On applying the Fleming's left-hand rule for the direction of the force on a current-carrying conductor in a magnetic field, figure 13.13, we find that the force acting on arm AB pushes it downwards, while the force acting on the arm CD pushes it upwards. Thus, the coil and the axle O, mounted free to turn about its axis, rotate anti-clockwise. At half rotation, Q makes the contact with the brush X and P with the brush Y. Therefore, the current in the coil gets reversed and flows along the path DCBA. A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator. In electric motor, the split ring acts as a commutator. The reversal of current also reverses the direction of force acting on the two arms AB and CD. Thus, the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD previously pushed up
is now pushed down. Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and to the axle. The commercial motor uses an electromagnet in place of permanent magnet. Large number of turns of conducting wire in the current carrying coil, a soft iron core on which the coil is wound, and the soft iron core on which the coil is wound plus the coil is called an armature. This enhances the power of a motor. अभी देखो मोटर जो है वो काम कैसे करती है कि अभी जो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है जैसे ये वाला, ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, दिस। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पर ये हमारा एक ABCD, तो यहाँ पर ये एरो जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट इस तरफ जा रहा है। क्योंकि ये सर्कुलर है ना, एक क्लोज्ड लूप बनाया हुआ है हमने, चौरस, ठीक है, और करंट यहाँ से यूं घूमेगा और फिर यहाँ पर यूं आएगा। अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बीच में, राइट। ये जो है X और ये जो है Y, वो ब्रश होते हैं। ब्रश मतलब एक कांटेक्ट पॉइंट है। देखो ये वायर जो जा रहा है, राइट, ये डायग्राम में ये वायर जो जा रहा है, राइट, वो घूम फिर के वापस यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर Y तक, और यहाँ से करंट उसको पास किया जाता है ना। तो करंट यहाँ से निकलते घूमते 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 वापस नेगेटिव तक आएगा। लेकिन तब तक क्या होता है कि यहाँ पर ये बीच में जो एक कटी हुई रिंग है, देखो यहाँ से हाफ है ना, तो अंदर की साइड तो इंसुलेटेड होता है, करंट पास नहीं होता है अंदर, ठीक है, अंदर एक रॉड होता है, और बाहर जो होता है वो करंट पास होता है, ठीक है। अब जब करंट पास होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, तो ये वाला आर्म जो है ना, ये इसका नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ABCD की जगह आ जाएगा और CD AB की जगह आ जाएगा, है ना। तो ये जैसे ऊपर गया, ये नीचे गया, राइट, CD ऊपर जाएगा, CD ऊपर जाएगा मतलब ये इस तरफ अपनी जगह पर आ जाएगा, AB की जगह, और AB जो है वो नीचे जाएगा मतलब वो इस तरफ आ जाएगा CD के पास। अब होगा क्या कि हाफ सर्कल यहाँ पर फिनिश हो जाती है ना। अब जैसे AB यहाँ पर गया तो AB तो उसको ऊपर ले जाएगा, CD की जगह पहुँच गया ना यहाँ पर, तो ये वापस ऊपर नहीं जा सकता, राइट। तो हाफ सर्कल में ये ऐसे घूमेगा
और अगर कुछ नहीं किया तो ये वापस इस तरफ आएगा, तो एक पूरा सर्कल नहीं घूमेगा, सिर्फ आधा ही घूमेगा, राइट। अब वो पूरा घूमे इसकी वजह से यहाँ पर हमने जो है कम्यूटेटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कम्यूटेटर। वो क्या होता है कि जैसे ही ये हाफ सर्कल पहुँचता है तो करंट का डायरेक्शन जो यहाँ से जा रहा था इस तरफ वो रिवर्स हो जाता है। अब करंट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। जैसे ही हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगी तो करंट जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे ही करंट चेंज हो जाएगा तो ये जो आधा ऊपर गया था वो नीचे से वापस ऊपर पहुँचेगा। फिर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये वापस यहाँ पर आएगा। हाफ हुआ तो वापस डायरेक्शन चेंज, तो ये वापस इधर आएगा। तो होगा ये कि हर हाफ सर्कल के ऊपर इसका करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता जाएगा और ये एक्सल जो है वो पूरा गोल 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 घूमता जाता है। तो मोटर आपने देखी होगी कि गोल गोल घूमती रहती है। अंडरस्टूड? तो रिवर्स डायरेक्शन जो करता है मोटर में उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, और इसी की वजह से मोटर जो है वो गोल गोल घूमती जाती है पूरी, और उसके साथ में लगा हुआ रॉड घूमता है। फिर उसके साथ में हमने पंखा लगाया हो तो पंखा घूमता है, कोई मशीन लगाया हो तो वॉशिंग मशीन का घूमता है, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है ऊपर ब्लेड लगा रखी है तो अंदर जो हम पीसते हैं वो सब पीस लेता है। सो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करता है, राइट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? वो क्या होता है? We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of the current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force, and this force causes the conductor to move. Now, let us imagine a situation in which a conductor is moving inside a magnetic field, right? Or a magnetic field is changing around the fixed conductor. What will happen? This was first studied by English physicist माइकल फैराडे। ये क्या आपको पता है कि एक मैग्नेट्स रखे हुए हैं, तो मैग्नेट के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, वो उससे परपेंडिकुलर में है, 90 डिग्री पे है, तो एक फोर्स उत्पन्न होगा, है ना। वो एक फोर्स उत्पन्न करेगा। अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे रहेंगे तो एक करंट पैदा होगा। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? Faraday made an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate the electric currents. To observe this effect, let us perform the following activity. तो माइकल फेराडे ने क्या ऑब्जर्व किया था कि या तो हम इलेक्ट्रिक जिसमें से पास हो रहा है कंडक्टर में से उसको स्टेशनरी रखते हैं, राइट। उसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेट की वजह से हैं उसको हम घुमा दें। पहले जो नॉर्थ साउथ था करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू में, फिर उसको घुमा दिया तो फोर्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर वापस उसको घुमाया तो वापस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर कंटिन्यूसली हम उस मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते रहते हैं जिसको मैं आपको समझाऊं तो ऐसे, कैसे कि ये एक फील्ड है कोई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब या तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को घुमाऊं कंडक्टर के आजू बाजू में, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट रखूं, इस कंडक्टर को गोल गोल घुमाऊं, राइट। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ओके। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो कहाँ काम आती है वो देखते हैं, राइट। तो टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स
goal, 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 large number of turns. Connect the ends of the coil to a galvanometer as shown in the figure. अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि करंट अगर उसमें से कहीं से भी वायर में से पास हो रहा है तो वो हमको दिखाएगा, करंट दिखाएगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कि भाई इसमें से करंट पास हो रहा है. And take a strong bar magnet and move its north pole towards the end of B of the coil. Now find any change in the galvanometer. तो एक करंट कैरिंग वायर है जिसको गैल्वेनोमीटर से जॉइंट किया हुआ है और फिर हम उस वायर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है अपना वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. इसका मतलब कि करंट इसमें जनरेट हुआ है वो हमको दिखाएगा. So there is a momentary deflection in the needle of the government galvanometer, say to the right. This indicates the presence of current in the coil AB. This deflection becomes zero the moment the motion of the magnet stops. Now withdraw the north pole of the magnet away from the coil. Now the galvanometer is deflected towards the left, showing that the current is now set up in the direction opposite to the first. Place the magnet stationary at the point near the coil. Keep its north towards the end of the B. See that the galvanometer needle deflects towards the right when the coil is moved towards the north pole of the bar magnet. Similarly, the needle moves towards left when the coil is moved away. So when the coil is kept stationary with respect to the magnet, the direction deflection of the galvanometer drops to zero. What do you conclude from this activity? तो ये एक्टिविटी करने से हमको क्या पता चलता है कि you can also check that if you had moved the south pole of the magnet towards the end B of the coil, the deflection in galvanometer would just be opposite to the previous. When the coil and the magnet are both stationary, there is no deflection. अभी हमने यहाँ पर क्या किया था कि या तो जो कोयल हमने लपेटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुमाते हैं या कोयल के आजू बाजू में मैग्नेट को हम घुमाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा. देखो ये बीच में जो आपको ज़ीरो है ना गैल्वेनोमीटर में वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो माइकल फेराडे ने क्या बोला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा विंड फार्म पे देखते हैं. विंड फार्म यानी कि एक बहुत बड़ा पंखा होता है ना, जो नेचुरल पवन आता है उसकी वजह से गोल गोल घूमता रहता है जिसको हम गुजराती में पवन चक्की बोलते हैं. तो पवन चक्की में होता क्या है कि बीच में एक रॉड जो होता है वो मैग्नेट का होता है, राइट, लोहे का, और उसके आजू बाजू में कोयल बनी हुई होती है. अब जैसे वो पंखा हवा की वजह से घूमेगा तो वो कोयल घूमेगी, है ना. तो मैग्नेट के आजू बाजू में कोयल कंटिन्यूसली घूमती रहती है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है फिर वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हवा ऐसे ही फ्रीली, उसका कुछ पैसा नहीं भरना पड़ता हमको, है ना, हवा आती है उसका, तो वो फ्री की हवा जो मिलती है उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, राइट. सो मोटर में हम क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे तो मोटर गोल गोल घूम रही थी पानी की, अपने घर में जो होती है वो. तो हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे. ओके, अभी यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया. पवन जो चल रहा था, राइट, उसकी वजह से वो पंखा घूमने लगा पवन की वजह से. तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, पंखा घूम रहा है वो. अब वो कॉइल उसके आजू बाजू में है, इसकी वजह से मैग्नेट है अंदर. तो मैग्नेट को या तो कॉइल के आजू बाजू में घुमाओ या तो कॉइल को मैग्नेट के आजू बाजू में घुमाओ तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो स्विच चालू करके अपना पंखा ऊपर जो लगा हुआ है वो घूमता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी.
और मांडवी पे समुंदर किनारे पे जहाँ पर बीच पे बहुत सारे विंड फैन लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। वो पंखा घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ये ऊपर सीलिंग में लगा हुआ पंखा जो है अपना, राइट, ये पंखा अगर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ख़त्म होगी, और वो चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती जाएगी। ओके, so this is known as electromagnetic induction. In this activity we observe that as soon as the current in the coil 1 reaches either a steady value of 0, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. From this observation we conclude that a potential difference is induced in the coil 2 whenever an electric current through the coil 1 is changing, starting or stopping. Coil 1 is called the primary coil and coil 2 is called the secondary coil. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. Thus, the magnetic field lines around the secondary coil also change. Hence, the change in the magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced electric current in it. This process, by which the changing the magnetic field in a conductor induces a current in another conductor, is called the electromagnetic induction. In practice, we can induce current in coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it. It is convenient in most situations to move the coil in the magnetic field. The induced current is found to be the highest when the direction of motion of the coil is at a right angle to the magnetic field. In this situation, we can use a simple rule to know the direction of induced current. स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, जैसे ये दिखाया गया है ना, तो ये मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर है। थंब जो है, फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, और सेकंड फिंगर जो है वो करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर दिखा रहा है फिगर 13 में। If the forefinger indicates the direction of the magnetic field and the thumb shows the direction of motion of the conductor, then the middle finger will show the direction of induced current. This simple rule is called the Fleming's right hand rule. तो ये राइट हैंड रूल की मदद से हमको पता लग सकता है कि मोशन अगर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट जो पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, राइट। आगे का चैप्टर का पॉइंट है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।